Good evening, friends. We have a new week, new month, a new series starting. It started on Friday, but the actual work happens only from Monday onwards. So, what is the future of Nifty? How we will trade Nifty, Bank Nifty, and I would also try to share some of my stocks which I have chosen for the next week or 10 days to trade on the upside. If you look at the Nifty, it is a daily chart of Nifty, and on the daily chart of Nifty, if I enlarge it, the range is coming with between 15,720, 715 to 15,845. So this should be the range for the Nifty on Monday. If we get a gap up opening, depends as what SGX is suggesting. अगर हमें gap up मिलता है, the gap up would be a selling opportunity. Why it would be a selling opportunity? Simply because on a daily chart time frame or on an hourly time frame, we are making a lower lows on a lower highs on the top. Bottom side, we are very stable. Bottom, we are not able to break 15,700 as of now. And on the derivative data side also, we are not able to break 15,700 with 54,000 more contracts or more on 15,700 puts open interest and around 83,000 contracts on 15,800 calls. The range is very narrow, but in case if it crosses 15,850, 845, 860 levels, we may see a sharp rally towards the previous highs of 960 and may eventually go past 16,000. But the catch in the situation is, if Nifty crosses, in case if Nifty crosses the two hurdles of 15,800 and 15,900, because derivative data open interest positions are very high there. In case, then we will not stop at 16,000 or 16,100. We will eventually touch 16,300 for the week, in case it happens. But the probability of that happening is low at this point of time, because if you look at the chart closely, we are seeing a lot of negative candles on the chart. A lot of negative candles on the chart. Dojis or negative candles. When such a scenario happens, it shows tiredness. On the weekly chart, a weekly time frame, Nifty is showing clear divergence on RSI, negative MACD, lower volumes. So it is suggesting a tiredness and it is suggesting a range bound to a lower range movement. तो ये निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में जो आपका रेंज होगा वो आपका 15,845 से लेके 15,720 तक का, 715 तक का रेंज होना चाहिए मंडे का. अगर आप इसी चीज को बैंक निफ्टी की तरफ लेके जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपकी जो रेंज बनेगी वो देखिए ऑन द अपसाइड बन रही है 35,800, ऑन द लॉन्ग और ऑन द बॉटम साइड बन रही है 33,900 की. बट अगर आप मीडियम टर्म रेंज देखते हैं, तो आपकी रेंज बनती है 35,130 की, एंड ऑन द बॉटम साइड आपकी रेंज बनती है 34,400 की. तो 34,400 शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. बट जैसा मैंने कहा, अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, इफ यू आर लुकिंग एट द डेली चार्ट, you will see a lot of lower highs, a lot of lower highs. अगर आप मेरा कर्सर ध्यान से देखें, a lot of lower highs. तो जब lower highs रेगुलरली बनने लगते हैं और बेस नहीं टूटता है, base is not broken, so what happens is it creates a triangular pattern, and once that pattern is completed in the next 2 or 3 days, then we may see a breakout or a breakdown on Nifty. Derivative data is suggesting an oversold position. डेरिवेटिव डेटा बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन बता रहा है. तो होगा क्या कि अगर गैप डाउन गैप अप होता है, तो इवेंचुअली ऑन द फर्स्ट हैंड जो पहला रिएक्शन होगा मार्केट का, वो सेलिंग का होगा. बट अगर सेलिंग ज्यादा होती है और वो 15,200, 15,700, 720, 730 के लेवल्स में आता है निफ्टी, तो वहां पे बाइंग आती है. और यही अगर बैंक निफ्टी में आपको 34,500, 34,600 का लेवल आता है, तो वहां पे आपको बाइंग मिलेगी ऑन द बैंक निफ्टी साइड. बट
अगर दोनों इंडेक्स को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी इज कंसिडरेबली वीकर। बैंक निफ्टी काफी वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब हम आते हैं अपने 3 स्टॉक पिक्स के ऊपर। हमारा पहला स्टॉक पिक होगा नवीन फ्लोराइड। नवीन फ्लोराइड का ये आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है, रिट्रेसमेंट लिए, रिट्रेसमेंट के बाद बेस बनाया है समवेयर अराउंड 3500 लेवल्स। क्लोजिंग हुई है इसकी 3657 की। तो आप सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाएंगे अराउंड 3560 का। आप स्टॉप लॉस लगाइए 3560 का, 3565 का, और आप इसको नवीन फ्लोराइन को बाई करेंगे with a stop of 3560, 3570 for a first target of 3620, sorry 3800 and a second target of 3900। ये आपका वीकली ट्रेड होगा ऑन नवीन फ्लोरिन। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप इसको नवीन फ्लोरिन को बाई करेंगे अगर हम क्लोजिंग प्राइस पे ही ओपनिंग होती है तो आप 3657, 3660 पे बाई करेंगे विद अ स्टॉप ऑफ अराउंड 3570, और पहला टारगेट होगा आपका 3820 और दूसरा टारगेट होगा 3900 का। अगर आप बाकी के 2 स्टॉक्स लेना चाहें तो दूसरा स्टॉक होगा हमारा लॉरस लैब्स। देखिए लॉरस लैब्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है ऑन द ट्रेंड लाइन। डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिया है लॉरस लैब्स ने। उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, 641 पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था आपका उसका अराउंड 624, 625 का प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है। तो आप इसको 625, 626 के सपोर्ट के साथ आप बाई करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 626, 625। और आपका जो पहला, आपका जो इवेंचुअल टारगेट होगा आपका अराउंड होगा 680 का। तो लॉरस लैब्स आपके लिए बहुत अच्छा बाई होगा फॉर द वीक। तीसरा बाई बनेगा आपका गुजरात गैस। गुजरात गैस को देखेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ये डेली चार्ट है गुजरात गैस का, अगर आप इसका आवरली चार्ट देखेंगे ट्रेंड पॉजिटिव है। बुलिश पैटर्न से 3 सोल्जर पैटर्न के बाद एक लॉन्ग कैंडल दिया है, वॉल्यूम सपोर्ट भी है। इसने एकदम रेजिस्टेंस के लेवल पे क्लोज किया है 718 के, एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस लेवल पे 714 है, 718 का हाई बनाया है। अगर ये स्टॉक 718 के ऊपर जाता है तो आपको गुजरात गैस का पहला टारगेट मिलेगा अराउंड 730 एंड इवेंचुअली अ टारगेट ऑफ 740। और इसका स्टॉप लॉस आप कहां लगाएंगे? इसका स्टॉप लॉस लगेगा आपका अराउंड 705 का। तो गुजरात गैस इज ऑल्सो अ बाई विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 705। अगर आप इसको पैटर्न बनाते हैं तो 705 पे ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए, आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा अराउंड, पहला टारगेट होगा आपका 733 और दूसरा टारगेट होगा अराउंड द प्रीवियस हाइज ऑफ अराउंड 740। तो आपके लिए 3 स्टॉक्स बाई बनते हैं, नवीन फ्लोरिन, गुजरात गैस एंड लॉरस लैब्स। तो अब एक शॉर्ट ट्रेड भी देना चाहता हूं। शॉर्ट ट्रेड होगा आपका चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस ने अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ दिया है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये पोजिशनली बहुत वीक हुआ है, पोजिशनली बहुत वीक हुआ है। आरएसआई निगेटिव है, वॉल्यूम कम है इसका। इसका सपोर्ट आता है समवेयर अराउंड 433 और इसका अभी करंट प्राइस पे क्लोजिंग प्राइस है 475। तो आप इसको सेल करेंगे विद अ पोजिशनल सेल करेंगे विद अ स्टॉप ऑफ 500 एंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 433। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड बनता है आपके लिए। तो निफ्टी के लिए अगर जो रेंज है 15800 टू 15700, ये रेंज अगर अपसाइड पे टूटती है तो ये आपकी जो 3 बाई स्टॉक्स दिए हैं, सजेस्ट किए हैं मैंने, ये आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं।
बट अगर आपके निफ्टी ने लोअर रेंज तोड़ी 15700 की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखिएगा, बेसिक प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।